Morning everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Shar from Surat. This video is for standard 8 subject social science chapter number 6 effects of the British rule in India. So friends, in last video we discussed about that was the chapter of geography, and we discussed about different kind of natural disaster. In that before that, in chapter number 4, how the traders became rulers, in that we discuss about uh, the different kind of British policies which helped to Britishers to rule over India. In that we discuss about subsidiary alliance policy, uh, which introduced by Wellesley, and then after we discuss about Dalhousie's policy of annexation, and with that what kind of reforms held in our country, and dissatisfaction among people of India, that we discuss. Here in this video we are going to talk about the conditions of our Indians, that after applying different kind of policies, and finally when they won battle of Plassey, battle of Buxar, and what kind of administrative policies they applied in our country, that effect in which term on our people, that we are going to discuss in this chapter. So before I start this video, in last video I told you that this is educational video. You should sit properly in a condition, take a notebook and pen with you. Whenever I am telling you that note down this thing, that you must have to write in your notebook, which helps you in revision work. Okay, so those who are not seated properly, may I request them to sit properly in a particular manner, and take a notebook and pen with you. With that, like the video, share the video, subscribe the channel, and press the bell icon. Okay, so let's start the video. In this chapter we are going to start with introduction. Then after we studied the condition of peasant and agriculture in our country during British rule. Then after we talk about effects on social life, the different kind of British policies, how did that affect on our people's life, especially in villages, that we discuss. Then after, how did our trade, which was one of the prosperous trading country of the world, became a poor country of the world, that we discussed destruction of Indian trade. And then after some another reforms which held in our country, suspicion about the reforms, the thought of the people, that we discuss. And finally there is an exercise given for your revision work. So let's start the video. uh, Many revolutions held in the world before British rule in India. Many people were of the world raised their voice for their rights. तो जैसे इंडिया में ब्रिटिश रूल 18th सेंचुरी में कम्प्लीटली एस्टेब्लिश हो चुका था, तो उससे पहले ऐसा इंडिया अकेला कंट्री नहीं था जहाँ पे यूरोपियन रूल स्टार्ट हो गया था. बहुत सारे कंट्रीज थे एशिया के, अफ्रीका के, जहाँ पे ये यूरोपियंस ने अपना रूल एस्टेब्लिश किया था. अब जब रेवोल्यूशन की बात होती है तो सबसे पहले जो बात होती है वो होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जो हुई थी 1789 में. उसका रीज़न जो था वो था कि वहाँ के लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था. वहाँ का रूलर जब 1783 में लुइस 16 जब फ्रांस का किंग बना, जब वो किंग बना तब वहाँ की जो ट्रेजरी थी वो खाली थी, तो उसने वहाँ पे टैक्सेस इम्पोज किए. अब ये टैक्सेस इस तरह से इम्पोज किए गए कि जिससे ग्रुपिज़म हो गया. यानी जैसे हमारी कंट्री में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ऐसे 4 ग्रुप होते थे,
वैसे फ्रांस में 3 ग्रुप होते थे, क्लेर्गी, नोबेल्स एंड थर्ड एस्टेट पीपल। तो क्लेर्गी में जो वहाँ के चर्च के जो पादरी होते थे वो आते थे, नोबेल्स में जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो आते थे, और थर्ड एस्टेट के लोगों में जो कॉमन पीपल होते थे वो आते थे। तो यहाँ पे जो उन्होंने टैक्स इम्पोज किया था उसकी टर्म ऐसी थी कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो क्लेर्गी और नोबेल्स का ग्रुप था उनको टैक्स नहीं देना है, और सब टैक्स थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिया। तो उसकी वजह से वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये फर्स्ट रेवोल्यूशन इतना इम्पैक्टफुल था कि उसकी इफ़ेक्ट काफ़ी सारी कंट्री में हुई। जैसे हमारे यहाँ पे भी 1857 का रिवोल्ट हुआ, फिर 1919 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ। तो ये सब इससे इंस्पायर हुए थे। अब लास्ट जो अगर कोई रेवोल्यूशन हुआ था तो वो था लिबिया सिविल वॉर, जो 15 फरवरी 2011 से लेकर 23 अक्टूबर 2011 तक चला। यहाँ पे मैंने उसकी एक डिटेल दी है जो आपके टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन के टाइम पे इसका जिक्र किया गया है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये डिटेल आपके लिए रखी है। तो अरुणा वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर in the morning while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. Aruna read loudly, Revolution in Libya. Hearing this, Purva asked, Why do people revolt? लोग revolt क्यों करते हैं? Aruna answered, When the needs of people are not satisfied and people face economic crisis, they revolt. जब जो गवर्नमेंट होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होती है, वो जब लोगों की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं और लोगों के पास पैसे नहीं बचते हैं, तब रिवोल्ट होता है। इन आवर कंट्री ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज वेरी बैड एंड रिजल्टेड इन अ रिवोल्ट। तो हमारी कंट्री में भी सेम कंडीशन थी, लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी। फिर 1857 में रिवोल्ट हुआ। इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टिल द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक हम लोग बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री थे। द एनार्की दैट फॉलोड द डेथ ऑफ औरंगजेब टू कुड नॉट वीकन इट। औरंगजेब के डेथ के बाद भी जो एनार्की यानी कुछ मिसडिसिप्लिन जैसा वो जब होने लगा, तो उसके बाद भी जो हमारी प्रॉस्पेरिटी थी वो कमज़ोर नहीं पड़ी थी। नॉट वीकन मीन्स कमज़ोर नहीं पड़ी थी। तो ये है औरंगज़ेब, आप देख सकते हैं यहाँ पे। It has been admitted by historians across the world that the industries, production techniques and the organization of trade in India were unmatched at that time. तो आज की डेट में जो हिस्टोरियंस है पूरी दुनिया के, वो ये एडमिट करते हैं, यानी वो ये मानते हैं कि भाई इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी, जो प्रोडक्शन टेक्निक थी, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड था, वो पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिला। द सेम कंट्री इंडिया बिकेम पुअर एंड बैंकरप्ट ड्यूरिंग द नियरली 200 years ऑफ द ब्रिटिश रूल। यानी 18th सेंचुरी 1757 से अगर हम बात करें तो वहाँ से लेकर 1947 तक अप्रोक्सीमेटली 190 ईयर्स में ये जो इतनी प्रॉस्परस कंट्री थी वो एकदम गरीब कंट्री हो गई, बैंकरप्ट हो गई, यानी किसी के पास कोई पैसा नहीं बचा। It became the country that supplied raw material to the factories in England and offered a large market for finished products of the factories in England. तो ये जो कंट्री 18th सेंचुरी पहले जो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ट्रेड करती थी, काफ़ी ऊंचा नाम था हमारा, वो कंट्री अब खाली रॉ मटेरियल सप्लाई करने लगी इंग्लैंड की फैक्ट्रीज़ के लिए, और इंग्लैंड की जो फिनिश प्रोडक्ट होती थी उसके लिए इंडिया एक बड़ा मार्केट था। इसके अलावा इंडिया के पास कुछ बचा नहीं था। और ये सब हुआ ये ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि वो हमारे पेशेंट को बाय फोर्स रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करवाते थे। हमारे लोग, हमारा जो टैलेंट था, हमारी जो स्किल थी, वो हमसे दूर कर दी गई, हमारा नॉलेज हमसे छीन लिया गया। और इसके बाद ये सिचुएशन हुई कि नई जनरेशन जो आई वो ऑलरेडी अपने आप को ऐसा ही बिलीव करते थे कि ये गुलाम ही हैं, हम गुलाम के जैसे बॉर्न हुए हैं और गुलाम के जैसे मर जाएंगे। और इसकी वजह से हमारी इतनी पावरफुल कंट्री वर्ल्ड की एक पुअर कंट्री बन गई। यूनिटी नहीं थी आपस में,
अंदर अंदर बैटल्स होती थी और इसकी वजह से हमारी जो पावर थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई और हम उसको यूज़ नहीं कर पाए। तो अब कंडीशन पीसेंट और एग्रीकल्चर की क्या थी वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। तो ये लिख दीजिए आप, दीवानी राइट्स, DIWANI RIGHTS, दीवानी राइट्स मीन्स rights, RIGHTS, rights to collect, COLLECT, collect land revenue, REVENUE of बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। तो हमें पता है कि भाई 1764 में जब ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ बक्सर जीत ली तो उसके बाद उन्होंने दीवानी राइट्स अपने हाथ में ले लिए, यानी अब वो जो है वो टैक्सेस वो खुद कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये एग्रीमेंट बना था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंगाल रीजन है और बंगाल बैटल ऑफ बक्सर में उड़ीसा भी था, बिहार भी था और बंगाल ट्रायो फोर्स थी। मीर जाफर, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम, मुगल एम्पीरियर शाह आलम, ये तीनों की कंबाइंड फोर्स को ब्रिटिशर्स ने हराया था। तो इसकी वजह से ये तीन रीजन का कंट्रोल उनके पास आ गया था। अब यहाँ पे ये होने के बाद अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसा इनकम सोर्स चाहिए जहाँ पे उनको ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पीसेंट टू अर्न मोर रेवेन्यू एंड एज अ रिजल्ट द पीसेंट बिकेम पुअरर। फिर उन्होंने हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट करना चालू किया, मारते थे, जेल में बंद कर देते थे, ज़बरदस्ती से उनके पास से रेवेन्यू लेते थे और इसकी वजह से हमारे जो पीसेंट थे वो गरीब हो गए। मैनी टाइम्स द पीसेंट हैड टू सेल देयर ज्वेलरी टू पे द रेवेन्यू। कभी कभी हालात इतने ख़राब हो गए कि उनको अपनी ज्वेलरी और घर का जो सामान था वो भी बेचना पड़ा था रेवेन्यू भरने के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीसेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली फेल इनटू अ डेब्ट ट्रैप। तो उनको मनी लेंडर के पास से मनी बोरो करना पड़ता था उनकी खुद की जो भी नीड्स थी वो फुलफ़िल करने के लिए, और वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे हमारे पेशेंट जो विलेज के लोग थे। तो उनकी उसकी वजह से ये मनी लेंडर्स उनको इस हिसाब से मैथ्स बताते थे कि ये पूरे के पूरे डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। यानी कितना भी इंटरेस्ट भरे, इंटरेस्ट तो कभी ख़त्म ही नहीं होता था, प्रिंसिपल की तो बात ही नहीं होती थी। सिचुएशन ऐसी होती थी कि अगर किसी ने अगर मनी बोरो किया है तो उसके 7 जनरेशन तक सब लोग खाली इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं, क्योंकि किसी को पढ़ना आता नहीं था, किसी को आइडिया नहीं था कि भाई किस हिसाब से ये इंटरेस्ट काउंट करता है, और वो जो समझाता था ये इनको मानना पड़ता था, कोई भी पेपर के ऊपर साइन ले लेते थे। तो उसके वजह से इनकी लाइफ बहुत ख़राब हो गई थी। फार्मर्स लॉस्ट द लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। फार्मर्स जो थे उनकी लैंड उनके हाथ से चली गई, ऊपर से जो नेचुरल क्लेमिटीज़ थी उसकी वजह से बहुत सारे रीजन में फैमिन जैसी सिचुएशन हो गई थी। मोर ओवर बंगाल विटनेस अ टेरिबल फैमिन इन द ईयर 1770। कीप अंडरलाइन और राइट डाउन इन योर नोटबुक, बंगाल, BENGAL, बंगाल विटनेस, WITNESSED, विटनेस अ टेरिबल फैमिन in the year 1770, famine, 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 in the year 1770 CE, in which lakhs of people died or starvation। तो ये जो बंगाल में जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, बहुत सारे लोग मर गए। 10 million people died in famine because ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड प्रॉफिट। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स को खाली प्रॉफिट दिखता था, उनको किसी की हालत नहीं दिखती थी। अब ये यहाँ पे सिचुएशन देखिए कैसी हालत थी लोगों की। ये बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद उनके पास राइट्स आ गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स।
तो ये आगे वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया ही था। गवर्नर जनरल, कीप अंडरलाइन और राइट डाउन इन योर नोटबुक, गवर्नर जनरल GOVERNOR, गवर्नर जनरल GENERAL, गवर्नर जनरल लॉर्ड LORD, लॉर्ड कॉर्नवालिस CORNWALLIS, कॉर्नवालिस एनफोर्स परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नई पॉलिसी अप्लाई की। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपको बेनिफिट ये है कि ये सब आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है और आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। तो ये वीडियो देखने का बेनिफिट आपको ये होता है कि आप कैरेक्टर को देख के उसको समझ सकते हो। ये 1786 से 1793 तक इंडिया के गवर्नर जनरल बन के रहे थे और इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्या था, तो ये देखते हैं। Lord Cornwallis introduced a revenue system in the state of Bengal, Bihar and Orissa known as permanent settlement. This was a pact made with the जमींदार, यानी जमींदारों के साथ में ये एक टाइप का ट्रीटी था, who collect revenue from the peasant and handed over a fixed amount to the British. यानी यहाँ ज़मींदारों को उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप आपकी मर्जी में आए उतना टैक्स कलेक्ट करो, हमको जितना % डिसाइड होता है उतना दे देना है, फिक्स अमाउंट। अब यहाँ पे ज़मींदार लोगों को छूट मिल गई कि वो अपने हिसाब से कितना भी टैक्स लेते थे, उसका जो फिक्स अमाउंट था वो ब्रिटिशर्स को दे देते थे, बाकी का खुद के पास रखते थे। उससे वो अपनी आर्मी छोटी सी बनाते थे, बॉडीगार्ड्स वगैरह रखते थे। अब गरीब पेशेंट कोई नहीं देता है तो उसको मार झूड़ करके उसके घर का सामान लेके आते हैं, उनको निकाल देते, ऐसी सिचुएशन थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेविड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, यानी उनको कैश ही चाहिए, पैसा ही चाहिए। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द टैक्सेशन प्रोसेस ऑल द लैंड्स वेर मेजर्ड एंड पट्टास वेर इश्यूड टू द फार्मर्स, यानी पूरी लैंड को मेज़र करके एक एक पीस पट्टास, यानी उनको एक एक पीस दे देते थे। टैक्सेस वर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ लैंड, लैंड जितनी बड़ी होती थी उतना ज़्यादा टैक्स भरना है। यहाँ पे भी है, ये आपको नोटबुक में सब लिख देना है। द परमानेंट सेटलमेंट ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल विच वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाली लैंडलॉर्ड्स to fix revenues to be raised from land, with far-reaching consequences for both agriculture matters and productivity in the entire British Empire and the political realities of the Indian countryside. और ज़मींदारों जो थे वो इस तरह के थे, क्या सिचुएशन थी। इन द 19th and 20th centuries, with the advent of British imperialism, many wealthy and influential zamindars were bestowed with princely and royal titles such as महाराजा, राजा एंड नवाब। तो ये ज़मींदारों को भी ये लोग क्या करते थे, ऐसे टाइटल्स दे देते थे, उनको भी थोड़ा प्राउड होता था और उसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स को हेल्प करते थे। तो एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑन एन एनुअल बेसिस। द जमींदार्स वेर गिवन द permanent rights to land and revenue collection. This is how a class of landlords loyal to the company was created. अब इन लोगों को क्या ज़्यादा बेनिफिट मिलता था, क्योंकि कुछ अमाउंट ब्रिटिशर्स को देनी है, बाकी अपने पास रखनी है। तो ये ब्रिटिशर्स के वफादार रहते थे, यानी कभी कोई भी मूवमेंट करने का सोचे या रिवोल्ट करने का प्लानिंग करे तो ये लैंडलॉर्ड ब्रिटिशर्स को पहले से ही इसकी इन्फॉर्मेशन दे देते थे। दिस एक्ट ऑल्सो एंश्योर्ड द इनकम ऑफ द कंपनी। इससे कंपनी को एक फिक्स अमाउंट मिलने लगी, उनको पता चल गया कि हमें हर साल इतना पैसा मिलने वाला है। अगेंस्ट दिस द peasant who worked hard in the hot sun to cultivate the land and grow crops were exploited. अब यहाँ ज़मींदार को पैसा मिल रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा मिल रहा है, पर जो peasant थे, जो गर्मी में अपनी लैंड को कल्टीवेट करके प्रोडक्शन करते थे, उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अब इसकी सोशल इफेक्ट क्या हुई, तो इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ। वॉरेन हेस्टिंग, द पर्सन हु वॉज गिवन द जॉब ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, वॉज नोन एज अ कलेक्टर।
तो इस तरह से कलेक्टर वर्ड स्टार्ट हुआ। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, वॉरेन हेस्टिंग, 1774 से 1789। अब ये इन्होंने जिन लोगों को रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया था, जो जमींदारों को, उनको कलेक्टर बोल बोले जाने लगा। ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ जज, और साथ में वो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें जज का भी परफॉर्मेंस देते थे। एज अ जज वो वहाँ पे डिसीजंस देते थे। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉयड अवर एंशियंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल। ये ब्रिटिश सिस्टम की वजह से जो हमारी सेल्फ रूल सिस्टम थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। इन द एंशियंट टाइम्स एवरी विलेज वॉज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक। ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज। तो आज की डेट में हमारी कंट्री में ग्राम पंचायत है, तो ये आज की सिस्टम नहीं है, पहले की सिस्टम है। पर ब्रिटिश रूल के बाद ये सिस्टम पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो जब एंशियंट इंडिया में हर एक विलेज एक रिपब्लिक जैसा था, वो यहाँ पे इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी की वजह से, ब्रिटिशर्स की इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी की वजह से एक एक डिपेंडेबल रीजन बन गया। ग्राम पंचायत, दिस पंचायत वर लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन आवर कंट्री। This institution of local self-rule stood their ground even during the times of foreign invasion and the Sultanate period, but were destroyed due to the administrative policies of the British. तो ये जो हमारा बेस था वो जब यहाँ पे बाहर से लूट करने लोग आते थे तब भी था, जब सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड चालू हुआ तब भी ये ग्राम पंचायत सिस्टम थी। पर ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये पूरी की पूरी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गई। The policy of social reforms by the company made people feel insecure and suspicious. अब जो कंपनी, ये ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा गलत काम भी किया था, पर उसके बीच उन्होंने कुछ अच्छा भी काम किया था। तो जो भी रिफॉर्म्स वो वहाँ पे यहाँ पे करते थे, उसकी वजह से यहाँ के जो लोकल लोग थे, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, वो इनसिक्योर फील करते थे। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजियन फॉर एवर। वो ऐसा मानते थे कि ये ब्रिटिशर्स हमें क्रिश्चियन बना देंगे और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पे देखिए, वाई लॉर्ड हेस्टिंग इंट्रोड्यूस जुडिशियल रिफॉर्म। बाय द टाइम 1772 ही वॉज गवर्नर इन काउंसिल एट कलकत्ता। He was of opinion that custom and tradition of the natives should protect it. He realized that importance of the sound judicial system, so he introduced the judicial plan in two phases in year 1772 and 1774. तो अब तक जो ग्राम पंचायत में जो रूल, जिस हिसाब से डिसीजन लिया जाता था, वो पूरी सिस्टम इन्होंने बंद कर दी और आज के जैसे कोर्ट जैसे है, जुडिशियरी हमारी है, उस तरह से एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाई। अब यहाँ पे और एक डिटेल है। हेस्टिंग वॉज बॉर्न इन ऑक्सफर्ड शायर 1732 एंड डेड इन 1818। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1773 to 1785 बट वॉज फेमसली impeached for corruption in 1787 and acquitted in 1795. He was made a privy councillor in 1814. तो ये इतना टैलेंटेड था वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारे लोगों को ऐसा लगा कि ये ब्रिटिशर्स हमारा रिलीजियन पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। पीपल बिलीव्ड दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वाज डेलिबरेटली अंडरमाइन इन द रेलवेज एंड मिलिट्री। एन ऑर्डर वाज पास्ड इन आगरा दैट एवरी इंडियन हैड टू सैल्यूट द ब्रिटिश। अब यहाँ पे हम रेलवे लाइन और मिलिट्री में हमारे लोगों को भर्ती किया जाता था। उसमें बहुत सारे एक्ट ऐसे होते थे जो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। ऊपर से आगरा में उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया कि हर एक इंडियन ब्रिटिश को सैल्यूट करेगा। इफ़ इट वाज नॉट डन इट वाज कंसिडर्ड अ क्राइम एंड वाज लेबल फॉर पनिशमेंट। अगर कोई इंडियन ब्रिटिशर्स को सैल्यूट नहीं करेगा तो उसको क्राइम बोला जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी। As a result, there was a widespread sentiment of anger and hatred for the British among the Indian. और इसकी वजह से हमारे जो इंडियंस थे उनके मन में ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा और नफरत भर गई थी। और ये सब ब्लास्ट होने वाला था 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर। वो स्टोरी में अभी देर है,
हम स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। और जैसे मैंने बोला है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि जब भी नया इसका पार्ट 2 अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। तो ये सिचुएशन हमें बताती है, ये चैप्टर में हमें क्या जानने को मिलता है कि किस तरह से एक प्रॉस्परस नेशन वर्ल्ड का सबसे पुअर नेशन बन गया। ये सब पॉलिसीज़ की वजह से, और हमारे लोगों में यूनिटी नहीं थी। मेन जो कॉन्सेप्ट आता है सभी प्रॉब्लम्स का जो रूट है वो यही है, यूनिटी। अगर यूनिटी होती तो ना ही ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर सकते हैं, ना ही हमारी प्रॉस्पेरिटी हमसे छीन ली जाती। तो ये हिस्ट्री जानने से आपको क्या सीख मिलती है कि फ्यूचर की जनरेशन आप हो। अब फ्यूचर में आपको यूनिटाइड रह के काम करना पड़ेगा, और ये आपके क्लासरूम से आपको स्टार्ट करना है। जैसे क्लास में आप एक दूसरे के साथ लड़ते हो, झगड़ते हो, तो फ्यूचर में भी ऐसा ही होने वाला है। अगर यूनिटी नहीं रहेगी तो फिर सक्सेस भी नहीं मिलेगी। तो लीडर बनो, अपने क्लास को यूनिटाइड करो। पहले क्लास को यूनिटाइड करो, फिर स्टैंडर्ड को यूनिटाइड करो, फिर पूरी स्कूल को यूनिटाइड करो। जिस ये आपका एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड पीरियड चालू है। यहाँ पे आपको ये सब सीखना है कि किस तरह से दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको इस तरह से इम्प्रेस किया जाए कि वो आपको फॉलो करे। अब किसी के प्रॉब्लम में आप उसको और परेशान करोगे तो वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा। तो कन्विंस करना आपको आना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप खुद को प्रूव करोगे आप वो लायक हो। इसलिए सबको हेल्प करनी चाहिए, खुद अपना होमवर्क टाइम टू टाइम करना चाहिए, खुद सब वर्क में पंक्चुअल होने चाहिए, जिससे लोगों को सीखने को मिले कि भाई ये अगर कर सकता है तो हमें इसके जैसा करना है। आज कैसा सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन को सब फॉलो करते हैं। तो बी ए लीडर, और इसकी ट्रेनिंग क्लासरूम से होती है। आपके क्लासरूम में से आपको ये सब सीखना है। जब आप क्लासरूम में लीडर बन सकते हो तो आप इंडिया के भी फ्यूचर में आप लीडर बन सकते हो, आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो और इंडिया को वापस सुपर पावर बना सकते हो। सो दिस इज ऑल इन योर हैंड्स, दिस इज डिपेंड ऑन योर डिसीजन दैट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री। So take care about all kind of these things. Stop your misbehavior, everything, whatever you are doing, and complete your work on time. Be punctual in every work and give respect to each and everyone. And solve the problem of all the people who are near about you or those who are coming to you for their solution. तो ये आपको सीखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की स्टोरी की बात करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।